Good morning to you students. We are in our history class once again, and today we are going to do the lesson 7, science and technology. Okay, in this chapter today, what are we going to study? Let us have a overthrough like now. In this chapter, we are going to first learn the achievements in the areas of science and technology that India has done over the years. Also, we are going to learn various important institutions which have done developments in this field of what, of which field, science and technology, and what all contributions they have done in this field. Okay, so now Indian Atomic Energy Commission. The first one in this is Indian Atomic Energy Commission. Now, India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. From this perspective, he set up the Indian Atomic Energy Commission on 10th August 1948. Dr. Homi Bhabha was appointed as the first chairman of the commission. The objectives of the commission were to produce electricity from atomic energy, increase the yield of food grains and make them last longer, set up the technology for achieving this, and develop nanotechnology. In 1956, the Department of Atomic Energy set up Apsara, a nuclear reactor functioning on atomic energy. Now, what is atomic energy used for? If you see the atomic Indian energy, in which year it was set up, they're telling us first is 10th August 1948. Now, what is this objective for producing this energy? To produce electricity. What is the main purpose of atomic energy? यानी मेन पर्पस क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है अपनी जो बिजली है उसको जनरेट करना. तो इस चीज को उन्होंने कौन से साल में शुरू किया था? 10th अगस्त को 1948. किसने? डॉक्टर होमी बाबा पहले चेयरमैन थे इस कमीशन के ऊपर. सो प्लीज अंडरलाइन दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यू विल गेट इट फॉर. ओके. And what happened in 1956? The Department of Atomic Energy set up Apsara, a nuclear reactor functioning on the atomic energy. उन्होंने अप्सरा के नाम से ऐसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर उन्होंने शुरू किया था 1956 में. In 1969, an atomic power station was set up at Tarapur. A reactor research center was set up at Kalapatnam in Tamil Nadu to successfully use थोरियम फॉर जनरेटिंग एटॉमिक पावर. अभी इन्होंने जो तारापुर में सेटअप किया था 1969 वो तो था ही. इसके अलावा उन्होंने एक रिएक्टर रिसर्च सेंटर कलापकम तमिलनाडु में शुरू किया जो थोरियम इसको यूज कर इस केमिकल को यूज कर उन्होंने एटॉमिक पावर जनरेट करना शुरू किया. द रोल ऑफ रिएक्टर्स इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग एटॉमिक पावर. ये एटॉमिक पावर जो है रिएक्टर्स जो होता है ये सारे अपने को एटॉमिक पावर जनरेट करने के काम आते हैं. फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द हैवी वाटर नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक पावर वर सेट अप एट वडोदरा, तलचर, टुटीकोरिन, कोटा एक्सेट्रा. इन चारों जगहों पे ये जो एटॉमिक पावर जनरेटर सेंटर्स थे, फैक्ट्रीज थे, उन्होंने हैवी वाटर के बेस किए थे. An institution called Heavy Water Projects was set up to carry out research on manufacturing heavy water within the country. It was later renamed Heavy Water Board. Now, ये जो सारे हमने देखे कि लेट्स फाइंड आउट, ये आपके पोर्शन को इस साल के लिए ओमिट कर दिया गया है. तो जो भी बॉक्सेस में अभी हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वहां से कुछ आना नहीं है. ओके. नाउ ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर. In 1885, a completely Indian-made nuclear reactor called Dhruva was started at Trombay near Bombay. Now, this is also objective point of view say important hai. Note it and make a note of it. You will get it. Okay. The Dhruva nuclear reactor uses uranium as fuel. At this center, 350 radioactive substances are produced. They are used in industry, agriculture, and medicine. ओके. दिस ये जो उन लोग जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जो बनाते हैं, ये 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है जो वो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन के काम आती हैं. नाउ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NPCIL. इसका एक्रोनिम जो दिया है उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म इन शॉर्ट जो दिया है NPCIL, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. This company was set up
in 1887 to generate electricity from atomic energy. The objective of the company is to master and develop the technology to generate safe, cheap, and environmentally profitable power and make the country self-sufficient. Okay, इसका क्या हेतु था, इसका क्या मेन उद्देश्य था कि हमें टेक्नोलॉजी यूज कर कर क्या करना है, सेफ, चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल एंड पावर जो है वो हमें कंट्री को एक सक्षम, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सक्षम बनाना अपनी कंट्री को। इसका ये इन्होंने कौन से साल में शुरू किया था, 1987 में ये इन्होंने शुरू किया। नाउ न्यूक्लियर टेस्ट, अब कोई भी चीज जब हम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, पहले उसकी एक एक्सपेरिमेंट होती है, एक टेस्ट होती है कि वो सही से चलती है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं या कभी कभी वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनके बहुत ही हाई रेडिएशन होते हैं, तो इसलिए उनको हमेशा ऐसी जगहों पे टेस्ट करने की जरूरत होती है जहाँ पे कोई भी ऐसे ज्यादा कोई क्या बोलते हैं आबादी नहीं है, वहां पे कोई लोग ज्यादा रहते नहीं, खेत खलियान नहीं है, वहां पे किसी के जान माल का नुकसान ना हो, ऐसे यानी जनरली एक बंजर जगह या कोई ऐसी जगह जो आबादी से कई कोसों दूरी पे है। तो इसलिए उन्होंने ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है उन्होंने पोखरण में किया। और ये पोखरण कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। एंड ये कब किया था उन्होंने, ऑन 18th May 1974 in consonance with the policy of using nuclear energy for peaceful purposes and for self-sufficiency. The reason why India took the decision was China's nuclear capability and Pakistan's desperate effort to acquire nuclear weapons with China's help. डॉक्टर होमी सेतना, अब होमी बाबा के साथ, होमी बाबा कौन थे, होमी बाबा फर्स्ट हमारे जो चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बॉम्बे में सेटअप किया उसके हेड हुआ करते थे होमी बाबा, डॉक्टर होमी बाबा। एंड डॉक्टर होमी सेतना कौन थे, द चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये थे। एंड डॉक्टर राजामा, डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, प्लेड अ मेजर रोल इन कंडक्टिंग दिस न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये जो होमी सेतना थे और डॉक्टर राजा राम रमन्ना थे, उन्होंने ये जो थे न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया। ये उनको क्यों जरूरत महसूस हुई, खास करके उनको जरूरत महसूस हुई क्योंकि चाइना ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और पाकिस्तान जो पहले से हमारा दुश्मन था, इन्होंने हमारे खिलाफ ऑलरेडी अपने जो न्यूक्लियर जो क्या बोलते हैं उसको, बॉम्ब्स थे या न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनको उन्होंने बनाना शुरू किया था। तो इनके अगेंस्ट हमें भी अपने आप को सक्षम बनाता, हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने तैयार किए। लेकिन हर हर कंट्री के अंदर जैसे हम देखते हैं कि यूएन के जो डायरेक्शंस के हिसाब से जो भी है, तो उसके यूनाइटेड नेशंस, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस के जो डायरेक्टिव्स है वो ये होते हैं एग्रीमेंट कि सारे देश जो है भले आपस में मनमुटाव हो, कुछ भी हो, सहमति नहीं हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है वो सिर्फ पीसफुल तरीके के लिए ही यूज करेंगे, जैसे एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये नहीं कि न्यूक्लियर पावर हमारे पास है तो हम उसके सिर्फ बम बनाएंगे, हम उसके सिर्फ एक्सप्लोजन करेंगे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी हमने देखा कि सालों साल उसका कैसे हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में जब वो यूज किया था अमेरिका ने, तो उसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट थे, वो आज तक वो लोग बहुत वहां पे उसके खामियाजा भुगत रहे। तो इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कभी भी हमने न्यूक्लियर जो वेपनरी है उसको पीसफुल मीन्स के अलावा और कभी यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी। तो इस हिसाब से उन्होंने तैयारी रखी और इसका न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने कहाँ किया, पोखरण राजस्थान में किया। कौन से साल में किया, 18th May 1974 में किया। ओके, देन the Prime Minister Indira Gandhi took the decision of carrying out the nuclear explosion. Pokhran was chose on the basis of required criteria for the location of the nuclear test. That is, क्या criteria था, क्या उसकी ये थी कि क्या होना चाहिए, far away from human settlement
एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, यानी पानी प्रदूषित नहीं होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगेन ये जो बॉक्स है वो हमारा ओमिटेड है, इस साल नहीं है। देन विल गो स्ट्रेट टू द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। अब उन्होंने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, कब किया? ऑन 11 मई 1998। तो ये साल आप अगर देखोगे मई में ही किया दोनों भी, लेकिन 4 साल बाद किया। वो 18 में फर्स्ट वाला किया था 1974 में, एंड सेकेंड वन दे डिड ऑन 11 मई 1998. India carried out its second nuclear test to prove its nuclear preparedness. 3 tests were done on this day. One of them was of the hydrogen bomb. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and assured that there would be no first use of nuclear weapons by India, but the USA imposed economic sanctions on India immediately. अब क्या हुआ, उन्होंने ये ऑलरेडी माना था, ये सारी जो शर्तें थी यूएन की वो मानी कि हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी इसके बावजूद इसके यूएस ने क्या किया, उन्होंने हमारे ऊपर कोई ऐसे आर्थिक बैन लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि हमेशा अमेरिका जो है वो अपने आप को एक सुपर पावर की तरह ही जाना जाता है और वैसे ही अपनी छवि रखना चाहता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई और देश उसके बढ़कर रहे, तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक बैन सैंक्शन किए। लेकिन क्या हुआ, मिसाइल डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो है पहले, अभी ये मिसाइल डेवलपमेंट की एक एक उन्होंने स्टेप उन्होंने हमें समझा कि क्या क्या मिसाइल्स हमारे यहाँ डेवलप हुई है। तो पहला हमारा जो मिसाइल था वो था पृथ्वी इन 1988। India successfully tested the missile Prithvi, and in 1989 the missile Agni. The entire world took note of India's program of developing nuclear missiles indigenously. Indigenously का मतलब होता है खुद अपने यहाँ घर के अंदर या खुद अपने अंदर, यानी इंडिया ने अपने से बनाना शुरू किया, किसी से इंपोर्ट नहीं किया, कोई भी तकनीक उन्होंने अपने से किया। ये उन्होंने साल 88 में और 89 में किया। पहला पृथ्वी किया और फिर बाद में उन्होंने अग्नि बनाई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IGMDP, was conceived by and carried out under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. Defense Research and Development Organization DRDO undertook the task of building the missiles. Prithvi 1, a surface-to-surface ballistic missile, was given to the army. Prithvi 2 was given to the Air Force, while Prithvi 3 was given to the Navy. अब इन्होंने ये तीनों भी जो अपने मिसाइल्स थे, इन्होंने कौन कौन से इन्होंने तीनों हिस्सों में बांटे। पृथ्वी 1 जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जो हम लैंड में जो आर्मी हमारी जमीन पे लड़ती है उनको पृथ्वी 1 वाली दी मिसाइल। पृथ्वी 2 उन्होंने किसको दिया? उन्होंने एयरफोर्स को दिया। और पृथ्वी 3 उन लोगों ने नेवी जो समंदर की रखवाली करते हैं उनको दिया। तो पृथ्वी had the capacity to carry nuclear weapons of 500 to 1000 kg, while Prithvi could travel a distance of 150 to 300 kilometers due to the nuclear ballistic missile. यानी उसकी स्पीड इतनी हाई थी। एक तो पृथ्वी की कैपेसिटी क्या थी कि वो न्यूक्लियर वेपन जो 500 और 1000 किलो के थे वो कैरी कर सकते थे, और पृथ्वी की ट्रेवलिंग डिस्टेंस स्पीड कितनी थी? 150 टू 300 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू द न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। अब अग्नि के बारे में बताएंगे। In order that China and Pakistan get an idea of India's missile strength and India's borders remain secure, Agni 1 was tested. This military missile had a range of 700 kilometers. Later, Agni 2 and Agni 3 were also produced. उसकी स्पीड जो थी वो 700 किलोमीटर की थी, और बाद में उन्होंने अग्नि 1 ही नहीं लेकिन अग्नि 2 और अग्नि 3 ऑल्सो उन्होंने बनाया। Akash and Nag missiles. In 1990, the missile Akash was developed to fire from land into air. This missile has a capacity to carry 720 kilogram explosive at supersonic speed. उसकी स्पीड इतनी है, सुपरसोनिक स्पीड है, एकदम लाइटनिंग स्पीड की तरह है, एक पूरी बिजली की स्पीड की तरह। और वो कितना कैरी कर सकती है? कैपेसिटी 720 किलोग्राम की एक्सप्लोजिव कैरी कर सकती है।
The missile Nag was made in order to destroy the tanks of the enemy. It is of the fire and forget type. India has militarily become secure due to the production of missiles. अब क्योंकि मिसाइल्स बनाने के बाद इंडिया कहते हैं कि अभी हम सिक्योर हो गए, यानी हमें अभी सुरक्षित हो गए. Now we'll come into space research, यानी हमारी जो स्पेस रिसर्च जो है उसके बारे में जानेंगे. हमने क्या क्या हमने किया, अंतरिक्ष यान में हमने क्या किया. तो in 1961 Indian National Committee for Space Research NCRSR launched India's first research rocket from Tumba Equatorial Launch Center in Tumba in the state of Kerala. Now ये जो है थम्बा, इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. In 1969 और इंडिजिनियसली यानी खुद से बनाया हुआ पहला रॉकेट रोहिणी 75 was successfully launched. कौन से साल में? 1961 रोहिणी 75 rocket. Okay. The next stage was the successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with the help from Soviet Union. This success proved that Indian scientists can indigenously build and launch a satellite. Indian scientists were confident that they could acquire the technology for sending a message from the Earth station and to access the working of the satellite. अब ये सारे सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद, अपने खुद के रॉकेट्स बनाने के बाद, अपने आप इंडिया के अंदर और उनके साइंटिस्ट के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम खुद से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, हमारी खुद की अर्थ स्टेशन हो सकती है, हमारी खुद की अंतरिक्ष यान वहां पे हम बिठा सकते हैं. Now, Indian Space Research Organization, ISRO, जो हम जानते हैं ISRO, ISRO हम जानते हैं, ये इंडियन स्पेस, इंडियन अंतरिक्ष यान की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है उसके बारे में. After the success of the basic program in the space research and rocket related projects, Indian Space Research Organization was established on 15th August 1969 in order to carry out further space research. The headquarters of ISRO are at Bangalore. ISRO activated the Space Research Station at Shrikota in Andhra Pradesh for launching our satellite space. इन्होंने धीरे धीरे इसरो की जो है ब्रांचेस उन्होंने बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे उनको अपनी एक एक ब्रांच बना दी. Now, Bhaskar 1. India launched remote sensing experimental satellite Bhaskar 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensing technology. This remote sensing technology would be useful for India's development by regarding water bodies, mineral deposits, and forecasting weather. The photographs taken with the help of this technology about the bowels of earth and environment and forest were important. Another area in which the information of this satellite was useful was oceanography. In 1981, Bhaskar 2 was launched from Soviet Union. ये जो भास्कर 1 है ना, वो 1971 में जो उन्होंने लॉन्च किया था, इसके क्या एक ये टेक्नोलॉजी का ये जो सैटेलाइट था, इसका क्या उपयोग था? इसका ये उपयोग था कि जो भी हमारे वाटर बॉडीज है, यानी जहां जहां पे हमारे नदी समंदर कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में हमें बताते हैं. मिनरल डिपॉजिट, जहाँ पे हमारी जमीन से मिले हुए वो धातु जो भी मिलते हैं, वो मिनरल्स मिलते हैं, उसके बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बता सकता है. फिर वो उतने दूर से फोटोग्राफ ले सकता है हमारे मैप्स के बारे में जानने के लिए. फिर ऑल्सो वो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हमारे, इन सारी चीजों के बारे में, ना कि सिर्फ यहाँ तक कि ओशियनोग्राफी, यानी हमारे जो समंदर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या स्टडी, उसके बारे में सारी चीजें इसके द्वारा हमें पता चल सकती हैं, इस सैटेलाइट द्वारा. Now Apple is what? Apple is Ariane Passenger Payload Experiment. Now what is this? The first completely indigenously built satellite by ISRO in India, Apple was launched on 19 June 1981 from the French Guiana. Apple was beneficial in the field of education. हम देखते हैं अभी एप्पल आईपैड जो भी है, ये सारी चीजें, यानी ये सारे एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने शुरू किया, और ना कि वहां तक उन्होंने इमरजेंसी टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस के लिए भी इसको यूज करना शुरू किया.
नाउ इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट जो है, इसको जो है, in August 1983 the satellite InSat IB was launched in space. Because of this satellite, a major revolution came about in the areas of telecommunication, television, radio, weather forecasting and space research in India. Due to InSat, 207 Akashvani or radio stations could be connected to each other. This mechanism was also useful for search and rescue of people caught in some disaster like a shipwreck or an airplane crash, for forecasting weather, to look for and follow cyclones or storms. In the field of telemedicine educational institution, the telemedicine services enabled the population from remote areas to get advice and treatment from experts. Public primary health centers in villages have been connected with super specialties hospital through INSET. INSET की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो ना कि सिर्फ वो ना जैसे कोई भी समंदर में कोई जहाज है, पानी का जहाज, वो कहीं डूब चुका है या कहीं एयरप्लेन का क्रैश हुआ या वेदर की फोरकास्टिंग है या कहीं पे साइक्लोन, टॉर्नेडो या ऐसे कोई भी चीज आने वाली हो उसके बारे में बताते हैं, स्टॉर्म्स के बारे में, तूफान आने वाला हो तो, ना कि सिर्फ यहाँ तक। लेकिन जैसे टेलीमेडिसिन, जैसे हम देखते हैं अभी ऑनलाइन हम देखते हैं सारा काम होता है, तो ये ऑनलाइन से जहाँ पे दूर दराज गांवों देशों में जहाँ पे सब जगह दवाइयां मुहैया नहीं हो सकती है, तो वहां पे उन लोग एडवाइस देते हैं थ्रू टीवी चैनल्स या थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वो कनेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नाउ टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या प्रोग्रेस हुई है? ए factory manufacturing railway engines, Chittaranjan Locomotive Works was set up at Chittaranjan in Burdwan district in West Bengal. Steam engines, electric engines and engines running on diesel were manufactured here. The first diesel engine was manufactured at Diesel Locomotive Works at Varanasi. India started exporting railway engines to Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and Vietnam. अब उन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी की? उन्होंने ये की कि सारे जो भी है वो रेलवेज उन्होंने शुरू कर दिए सब जगह पे, तो वेस्ट बंगाल से शुरू किया और धीरे धीरे इंडिया क्या करने लगा, रेलवे इंजन जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, तांजानिया और वियतनाम जैसे देशों में उसको एक्सपोर्ट करने लगा। ना टेली सर्विसेज का मतलब है, टेलेक्स सर्विसेज का मतलब है जो हम लोग टेलीग्राम, फोन लाइंस ये सारी जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेलेक्स सर्विस। तो ये पहले टेलेक्स सर्विस कहाँ पे शुरू हुआ? 1969 में देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी यानी जो हमारी हिंदी और मराठी लिपि होती है उसको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, ये उन्होंने पहली बार दिल्ली में शुरू किया और लेटर ऑन बाद में धीरे धीरे सारे कंट्री में फैल गए। एंड फिर बाद में इंटरनेट के आने के बाद ये सर्विस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा और फिर उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वारा सारी चीजों को डेवलप करना शुरू किया। तो in order to establish satellite communication with the help of an artificial satellite, a domestic satellite communication earth station was established in 1967 at Jodhpur Terka near Ahmedabad. इससे क्या हो गया, ये जो अर्थ स्टेशन जो उन्होंने शुरू किया उससे क्या हुआ, सैटेलाइट्स जो उन्होंने बिठाने शुरू किए उसके वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन सर्विसेज हमारे शुरू हो गए, इंटरनेशनल टेलीकॉम IST टेलीकम्युनिकेशन सर्विस शुरू हो गए। नाउ पिन कोड, हमारे पिन कोड जो है टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कभी शुरू हो गए? 15 अगस्त 1972 से। ओके और इन्होंने यहाँ पे एक पिन कोड सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि हर एक जगह की एक पिन कोड होती है, सारी चिट्ठियां जो भी होती हैं या जो भी हमारे हम देखते हैं कि कोरियर भी करते हैं, हमारा उस जगह का पिन कोड बताना पड़ता है, फिर वहां पे सीधे से वहीं पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट्स रीजन, द सेकेंड डिजिट इंडिकेट्स सब रीजन एंड द थर्ड डिजिट इंडिकेट्स डिसबर्समेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे रीजन क्या होता है, जैसे पहला रीजन होगा महाराष्ट्र, सेकंड में क्या होगा, मुंबई होगा सब रीजन, तीसरा क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट, जैसे वसई, अगर हम वसई में है तो वसई आ जाएगा। तो ये फॉर महाराष्ट्र कौन कौन से उन्होंने नंबर्स दिए, 40, 41, 42, 43, 44, ये पहले डिजिट्स होते हैं उसके, तो ये बताएगा हमें ये महाराष्ट्र का मेल है। ठीक है, बाद में उन्होंने 86 में धीरे धीरे स्पीड पोस्ट सर्विस भी शुरू की। नाउ
इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस यानी आईएसडी, ये जो हम देखते हैं आईएसडी की फैसिलिटी, पहले हम देखते थे कि पब्लिक बूथ हुआ करती थी आईएसडी बूथ, अभी हम घर से ही या मोबाइल के द्वारा ही कर सकते हैं। बट ये पहली बार क्या कब उन्होंने शुरू किया? इन 1972, एंड देन in 1976 the international subscriber dial telephone service was started to connect Mumbai and London directly on phone. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तभी उसके साथ साथ ही उन्होंने टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो इमेजेस भी शुरू किए। यानी हम देखते हैं टेलीग्राम के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता था। इन 1986 विदेश संचार निगम जो है ये उन्होंने शुरू किया, बीएसएनएल, एंड उसके बाद उन्होंने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल को शुरू किया, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, गिविंग टेलीफोन सर्विसेज इन बिग सिटीज। महानगर का इसके नाम से हमें पता चलता है, बड़े बड़े शहरों में उसकी सर्विस शुरू की। इन 1990s विदेश संचार निगम लिमिटेड held a distinction of being the main internet service provider in India. The contribution of Sam Pitrodia in this field is significant. Okay, ये उन्होंने जो है उन्होंने तभी शुरू किया, वहां से टेलीफोन से वो अभी जो है हमारी करंट मोबाइल शुरू किया। ये कब शुरू किया? On 22nd August 1994. The mobile phone services started in India. At this time, the mobile handset cost 45,000. तभी हम जानते थे कि अभी जैसे फ्री कॉलिंग है या कुछ भी है, तभी सिर्फ फोन अभी हमारे 10,000, 5,000, 3,000 तक भी आते हैं, लेकिन तभी जब पहली बार आया तो 45,000 की कॉस्ट थी, और पर कॉल की रेट क्या थी? 17 रुपए थे तभी, यानी 1 मिनट में आप 17 रुपए, इतने महंगे थे। फिर धीरे धीरे जैसे दूसरे भी कंपनियां आने लगी और उनके नेटवर्क फैलने लगे और इजी हो गया और सारे ग्राहक आने लगे, फिर धीरे धीरे आज हम देखते हैं यहाँ तक कि कभी कभी आउटगोइंग भी उन्होंने फ्री किए, अनलिमिटेड कॉल्स किए। नाउ भारत संचार निगम लिमिटेड, नाउ अबाउट दिस, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जो है, इन 2000 द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाज रीस्ट्रक्चर्ड. The responsibility to make policy decisions was retained with the telecom department, and Bharat Sanchar Nigam Limited was established to actually provide the services to consumers. Along with the telephone service, cellular phone, internet, broadband service were also made available. इसके साथ उन्होंने क्या क्या किया? ये जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विस है, ये भी उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस का क्या मतलब है? इससे हमें क्या पता चलता है? ऑयल एंड गैस वो होता है जहाँ पे हम तेल खाने का भी इस्तेमाल जो करते हैं वो भी, और जो हम हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल और जो तेल डालते हैं या जो भी हमारे डीजल होती है, केरोसिन होती है, ये भी हमारे जो है समंदर से निकालते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बिठा दी इंडिया में, ऑयल एंड गैस या मिनरल ऑयल जो मिलते हैं उसके लिए। तो आज भी हम जैसे हमारे जो पेट्रोल वेट्रोल है वो हम ज्यादा करके हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जैसे सऊदी अरेबिया से या यूएई से या अमेरिका से, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने खुद से भी शुरू किया। कहाँ किया? कहाँ किया? एक तो उन्होंने आफ्टर दिग्बॉय इन आसाम, मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स वे फाउंड इन अंकलेश्वर इन गुजरात. Later mineral and oil and gas deposits were found in Gulf of Khambat in Gujarat. And in 1974, the Oil and Natural Gas Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called Sagar Samarth. From 1975, mineral oil and natural gas began to be extracted from there. अभी हमारे यहाँ से अगर आप देखते हो तो इन सारी जगहों से हमारे यहाँ भी हमें तेल और ये जो मिनरल ऑयल है वो सब मिल जाता है। From 1975, mineral oil and natural gas began to be extracted. Later on, more than 8,500 oil wells and 33 natural gas wells were dug eventually in this area and began to contribute to 38% of the total mineral oil production in the country and met 14% of the country's demand for crude oil. अभी क्योंकि अभी हमें सारा का सारा अभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, जो हमारी 14% है हमारे यहाँ से हमें उत्पादन होकर मिल जाता है। Railways and technology. The technology adopted by railways has a big role in the history of modern India. In order to bring efficiency, accuracy,
and coordination in the reservation system in railway. Computerized reservation system was started for the first time in Delhi in 1984. In the same year, the metro was started in Kolkata. In this way, India has been making progress in the field of science and technology. New inventions have been made. अभी हम जैसे हमने देखा है कौन कौन सी फील्ड में, हमने देखा न्यूक्लियर पावर एनर्जी में, हमने देखा स्पेस टेक्नोलॉजी में, हमने देखा कि जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उन्होंने टेलेक्स सर्विस में किया, उन्होंने सैटेलाइट में किया, फिर उन्होंने हमारी टेलीफोन सर्विसेज मोबाइल, फिर उन्होंने ऑयल एंड गैस कमीशन में किया, फिर उन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट में किया, रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी में भी हमने डेवलपमेंट की, हमने हमारी मिसाइल के भी डेवलपमेंट की। तो इस तरह से इंडिया ने, हमने देखा इस लेसन में कैसे अपनी टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडवांसमेंट की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी जो उन्होंने जो है वो बेनिफिट के लिए इंडिया को कैसे सक्षम बनाने में, कैसे समर्थ बनाने के लिए उन्होंने ये सारी डेवलपमेंट्स की। ओके, नाउ इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग यू ऑल नोट्स ऑफ दिस लेसन एंड यू ऑल कैन इन द मीन टाइम आप भी ट्राई कर सकते हो कि अपने से भी, क्योंकि जैसे मैंने समझा है यहाँ पे आपको जो भी हमने ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे कौन कौन से है वो आपको बताना है। डैश वाज नेम्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। डैश वाज द फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेड बाय इसरो। ये सारे इजी पढ़ेंगे हमें, ठीक है। ट्राई इट ऑन योर ओन, आई विल गिव यू ऑल नोट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you students very much. God bless you.